Hello and welcome students. Today we are going to begin a new chapter of our standard 11 physics syllabus, and as you can see the chapter name is Motion in a Plane. My name is Salman Petiwala. I am an MTech gold medalist from IIT Madras and I'll be dealing with this particular chapter, that is Motion in a Plane, with you all. Okay, so let's make a start. दोस्तों इस चैप्टर में before studying about motion in a plane, first try and understand what are the different types of motions in nature. So we'll start the chapter by understanding what are different types of motion. Okay, fine. So let us put that down. So motion, या मैं कह सकता हूँ types of motion. So it's very simple. So guys, motion of a particle or motion of a body can be of three types. The first one will be motion in one dimension. You know what's a dimension, right? Okay. Second will be motion in two dimension. And the third will be motion in three dimension. Now let me explain ये क्या चीज है. Motion in one dimension, you can call that as your axis. Okay, one dimension मतलब only one axis. For example, x axis is one axis. Motion in two dimension मतलब it is a motion in two axes like this. One is x, other is y. And if I talk about motion in three dimension, then it is like this: x, y and z. Okay, तीन axes बन जाते हैं x, y, z. So what exactly is motion in one dimension? So one dimension matlab it is like one line only, right? So actually motion in one dimension can be said as if a body is moving in a straight line, एक line में जब move करता है, एक axis के along move करता है, then that is called motion in one dimension. Okay? So what is motion in one dimension? It is motion of a body in a straight line, जब वो straight move करता है. Okay, fine. So that is an example of motion in one dimension, motion in a straight line. दोस्तों motion in one dimension या motion in straight line को कहा जाता है linear motion. Line मतलब linear, right? मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा linear equation. Linear equation में आप लोग देखते हो you always draw straight line. उसी तरह से अगर कोई body straight line में चल रही है, so that will be called as motion in one dimension. So this is, as I said, also called as linear, right? Linear motion. और linear motion के साथ साथ it is also called as rectilinear motion. Okay, fine. So I hope ये motion in one dimension का basic चीज आपको पता चल गया. अगर कोई body straight line में move कर रही है, एक ही line में move कर रही है, that will be called as one dimension. Okay, I'll give you an example. Example would be car moving on a straight road. एक straight सीधा सा road है and there is a car moving. Let's say for example this is your road, and let's say एक कार है, तो आप बोलोगे सर this is let's say my car, मस्त एक कार है, and this car is moving straight, going straight in one line like this, straight travel कर रही है, right? So this will be termed as rectilinear motion या linear motion या motion in one dimension जिसे कहा जाएगा, सीधा जा रहा है, no problem. Okay, fine. So this is an example of what? Linear motion. Simple है, car in one moving straight line. Now let us try and understand motion in two dimension. So यहाँ पर जो motion होगा ना, वो सिर्फ एक axis से हम define नहीं कर सकते. यहाँ पर तो सिर्फ एक axis से ही ले सकते. For example, there was only one axis out here. Now motion in two dimension will require two axes. So what do I mean by that? Let me come there. So motion in two dimension का मतलब I need to have two axes. For example, let's say this is your one axis, let's say y axis and x and y axis, right? So अगर motion को define करने के लिए if I need two axes x and y, so that will be called as motion in two dimension. Okay, motion in two dimension. और दोस्तों motion in two dimension मतलब जो दो dimension होगी ना, if you take two dimensions then they'll make a plane. What will they make? Two dimensions x and y make this xy plane, right? So इस plane को कहा जाएगा
कौन से प्लेन को, ये जो रीजन बनता है ये वाला, दिस विल बी कॉल्ड एज योर प्लेन, एक्स वाई प्लेन टू बी प्रिसाइज, राइट। यहां पर कहा जाए, कहूंगा मैं इसे, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन। तो जब भी दो एक्सेस मिलते हैं तो प्लेन बनाते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल गाइस, दिस इज माय बुक, ओके, आपको दिखाऊंगा। तो ये होगा मेरा, ये पेन बना मेरा वाई एक्सिस, ये बना मेरा, अब ये पेन बना मेरा एक्स एक्सिस, राइट। तो ये जो सरफेस बना है एक्स और वाई एक्सिस के कॉम्बिनेशन से, दिस विल बी टर्म्ड एज अ प्लेन, ओके, इसको मैं कहूंगा प्लेन, फाइन। सो मोशन इन टू डायमेंशन को भी कहा जा सकता है मोशन इन अ प्लेन। What will that be called? That will be called as motion in a plane. Basically एक डायरेक्शन में काम नहीं चलेगा, वहां दो डायमेंशन की जरूरत होती है, ओके, फाइन, ओके। सो आई होप ये समझ में आ गया मोशन इन प्लेन क्या होता है। एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल ऑफ दिस विल बी, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस विल बी, आई कैन से सर्क्युलर मोशन, सर्क्युलर मोशन। सो दोस्तों, इफ आई वांट टू ड्रॉ अ सर्कल, if these are my two axes x and y and I want to draw a circle, then how can I draw a circle? I'll draw this is x and this is y, right? So I'll draw a circle like this. So any point on this circle, let's say ये point ले लिया मैंने, on this circle will have x coordinate as well as y coordinate, right? For example 5,6, right? For example like this 2,1, right? So आप देख सकते हो हमारे पास यहां पर दो एक्सिस का यूज करके हमने सर्कल बनाया, राइट। एक एक्सिस में अगर बोलूं सर्कल बना तो पॉसिबल नहीं है, ओके। अगर एक एक्सिस में बनाना ही है तो हम सिर्फ एक इंटीजर लाइन बना सकते हैं, राइट। यू कैन ओनली ड्रॉ एन इंटीजर लाइन लाइक दिस, नंबर लाइन, जिसे नंबर लाइन कहते हैं। इट्स ओनली हैविंग वन एक्सिस, राइट। दिस इज अ नंबर लाइन इन वन एक्सिस। बट अगर सर्कुलर मोशन समझना है, सो वी नीड हाउ मेनी एक्सिस? वी नीड टू एक्सिस। देयरफॉर सर्कुलर मोशन इज एक्चुअली अ मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन जब स्टडी करेंगे तो उसमें वील स्टडी सर्कुलर मोशन, ओके। इट रिक्वायर्स टू एक्सिस। नाउ वन मोर एग्जांपल व्हिच वील डील इन दिस चैप्टर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। टू डायमेंशन में सर्कुलर मोशन तो होता ही होता है, एज वेल एज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। So guys, again let's take the two axes. Let's say this is my x axis, this is y axis, okay, x axis, y axis, right. Let's say मैं बॉल फेंक रहा हूं, ठीक है। कब आपने कभी किसी बॉल को फेंकते हुए देखा है? आप बोलोगे सर बिल्कुल देखा है। लेट्स से इस पॉइंट से मैंने ऊपर ऐसा बॉल फेंका, ठीक है। तो यहां से जब मैं बॉल ऊपर फेंकूंगा तो ये बॉल ऊपर ऊपर ऐसा जाएगा, कैसे जा रहा है देखो, ध्यान से देखो। फिर आगे जाकर के यहां पर कहीं वो गिर जाएगा, राइट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लेट मी जस्ट एक्सटेंड दिस अ लिटिल बिट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। कोई भी चीज का ऐसा नीचे से उठना, ऊपर जाना और फिर नीचे गिरना, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ऐसा चाहे बॉम्ब भी फेंक सकते हैं, राइट। ऐसा लेके बॉम्ब ऊपर फेंका, बॉम्ब ऊपर गया, फिर नीचे दुश्मन के आई कैन से की जगह पे जाके गिर गया और बॉम्ब फूट गया, राइट। क्रिकेट में भी ऐसे ही होता है। अगर कोई फील्डर को बॉल फेंकना होता है, क्रिकेट आप लोगों ने खेला होगा या एटलीस्ट देखा तो होगा, ये बाउंड्री पे यहाँ पर फील्डर खड़ा है, उसको कीपर के हाथ में बॉल फेंकना है, तो ऐसे जमीन से थोड़ी फेंकेगा, वो ऊपर फेंकेगा, राइट। जब वो ऊपर फेंकेगा तो बॉल ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आके यहाँ पर कीपर के हाथ में गिरेगा, राइट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टू, आई कैन से motion in a plane or projectile motion. As you can see, we need two axes. We need x axis as well as y axis. So this is also a motion in a plane, because if you take any point, therefore it will have two coordinates, right? यहाँ पे दो coordinates बनना चालू होंगे. For example, this point will be let's say 10,8 and so on. कोई आगे का point ले लो तो this will be 12,2, right? So there are two coordinates. Fine. तो two coordinates से हम एक projectile को define कर सकते हैं. Circular motion को भी हम define कर सकते हैं. Okay? So these will be the two examples of my what motion in two dimension, also called as motion in a plane. ये word ध्यान से सुनो, ये actually हमारा chapter है, motion in a plane. Okay, fine. एक plane के अंदर motion. Similarly, motion can also be in three dimensions. Three dimension. तो three dimension के लिए we'll require three axes, right? So when the body is moving in three axes. For example, let me show you the three axes. So you might have studied in maths that you have three axes in nature. This will be x axis,
दिस विल बी y एक्सिस एंड दिस विल बी z एक्सिस, ठीक है। तो बहुत सारे मोशन ऐसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा हिलते रहता हूं, कभी यहां जाता हूं कभी वहां जाता हूं, मेरा हाथ कभी यहां जा रहा है कभी वहां जा रहा है, एक प्लेन में नहीं है। अगर सिर्फ मैं, लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक रबर बैंड है, अगर इसको इस पे घूमता रहूं, मतलब मैं प्लेन में घूमता रहूंगा, राइट, बराबर, दिस विल बी 2 डायमेंशन, क्योंकि मैं एक, ये प्लेन है उसमें ही घूम रहा हूं। पर अगर मेरी बॉडी स्पेस में ऐसे घूमते रहे, कभी आगे जाए कभी पीछे जाए, कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए, ऐसा जाए, आगे भी जा रही है पीछे भी जा रही है, एक्स वाई जेड सब जगह मूव हो रही है, राइट। सो मोशन ऑफ अ बॉडी इन स्पेस दैट इज कॉल्ड एज 3 डायमेंशन मोशन, जो हमें एक्चुअली इस चैप्टर में नहीं देखना है, हमें 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में मेनली फोकस करना है, 3rd डायमेंशन में नहीं जाना है। तो एग्जाम्पल ऑफ दैट विल बी मोशन ऑफ अ बॉडी इन स्पेस, कोई भी स्पेस, हमारे घर की स्पेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरा मोशन, मैं कभी ऐसा एक मोशन में नहीं चलता, मैं कभी आगे जाता हूं कभी लेफ्ट जाता हूं, कभी मैं जंप मारता हूं वाई एक्सिस के लॉन्ग, राइट, बराबर, ठीक है। सो दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन 3 डायमेंशन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड हाउ आर वी क्लासिफाइंग द टाइप्स ऑफ मोशन इन दिस चैप्टर। पहले हम 1 डायमेंशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसे हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, राइट। रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। देन लेटर ऑन इन द चैप्टर we'll go on to motion in 2 dimension, but before going forward, please make a note of this introduction. So guys, now it is time to move on to the first type of motion, that is motion in 1 dimension, right, 1 axis के along जो motion होता है, जिसे हम rectilinear motion या linear motion कहते हैं। Let us try and understand that one first. So first we'll study what do you mean by a rectilinear motion. So what's a rectilinear motion? It will be a motion in 1 डायमेंशन, एक डायमेंशन के अलोंग जब मोशन रहेगा ना तो उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। उसे समझने के लिए लेट मी मेक एन एक्सिस फॉर यू, ठीक है। लेट्स से हमारा जो मोशन अब होने वाला है वो इस एक्सिस पे होने वाला है, ठीक है। तो समझाने के लिए जस्ट टू स्टार्ट आई विल से दैट लेट्स से दिस इज माय ओरिजिन, ओके, दिस इज माय ओरिजिन O, लेट्स से दिस इज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, कोऑर्डिनेट बना रहा हूं, राइट, 3 4 5 and 6, ओके, बराबर। ये मेरा एक्सिस है, 0 इज माय पोजीशन, राइट, ओके, सॉरी ओरिजिन, और हमारे पास नंबर लाइन यहां पर कुछ है, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक बॉडी है, कहां पर है, इस पॉइंट पे है, इनिशियली स्टार्ट पॉइंट उसका यहां पर है, तो ये इस पॉइंट से एक बॉडी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो कहना इससे ये यहां पर है एक बॉडी, कहां पर है, इस पॉइंट पे, मैं इस पॉइंट को कहूंगा पॉइंट ए। सो व्हाट इज दिस पॉइंट ए? पॉइंट ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। तो मैं कहूंगा गाइस, व्हाट विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट? पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट लेट्स से विल बी x1 वेक्टर, राइट, x1 वेक्टर। व्हाट इज x1 वेक्टर? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। अभी इतना स्टोरी पहले समझो ध्यान से। एक बॉडी है, लेट्स अज्यूम एक कार है, ठीक है, एक गाड़ी है, वो कहां से स्टार्ट हुई? वो इस पॉइंट से स्टार्ट हुई, किस पॉइंट से? एज आई जस्ट मेंशन्ड, इस पॉइंट से स्टार्ट हुई। इट मूव्ड, लेट्स से इट स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, ऐसा आगे गई आगे गई आगे गई आगे गई, फिर जा करके 6 तक पहुंची, राइट, इट वेंट अहेड लाइक दिस, राइट, इस डायरेक्शन में आगे गई, सिंबल डायरेक्शन, और वही उल्टा यू टर्न मार के और यहां पर से यहां पे आई सॉरी, यहां से आई, यू टर्न मारा उसने, और फाइनली ये इसका एंड पॉइंट हो गया, ठीक है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। स्टार्ट कहां से लिया? स्टार्ट यहां से लिया, गया गया गया, यू टर्न मार के उसी लाइन पे वापस आए, ठीक है। अभी मैं घुमा के इसके लिए बता रहा हूं तो समझने के लिए, पर वो वापस उसी लाइन से वापस आया। सो कैन आई से इट एंडेड एट दिस पॉइंट, दिस विल बी द एंड पॉइंट। व्हाट इज दिस? आई विल कॉल दिस एज पॉइंट बी, दिस विल बी द एंड पॉइंट। और दोस्तों इस एंड पॉइंट का अगर मुझे पोजीशन वेक्टर बनाना है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है आपको पता है, इट इज नथिंग बट अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। तो इसका पोजीशन वेक्टर मैं कहता हूं x2 वेक्टर, ओके, फाइन। सो यहां पर वो स्टार्ट ले रहा था, तो उस समय लेट्स से जब वो स्टार्ट ले रहा था तो टाइम t1 था, स्टार्टिंग टाइम, और जहां खत्म हुआ वहां पर टाइम t2 था, ठीक है, एंड पॉइंट पे टाइम t2 था, वो घूम करके यहां से यहां आया। So for this motion, let us try and understand 2 very important terms. First term is displacement, second term is called as path length. Actually आप लोग ने ये चीज पढ़ी हुई है 10th स्टैंडर्ड में या इवन 9th स्टैंडर्ड में। So displacement
एंड सेकेंड टर्म वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज कॉल्ड एज पाथ लेंथ, और एक्चुअली उसको डिस्टेंस भी कहा जाता है एट टाइम्स, सो मैं इसको ये भी लिख देता हूं, डिस्टेंस भी बोला जाता है, ठीक है, या उसको टोटल डिस्टेंस भी कहा जाता है, डिस्टेंस भी कह देंगे रफ वर्ड्स में तो भी चलेगा. सो वील अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स फर्स्ट. सबसे पहले हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड सेकंड वील सी अ पाथ लेंथ. First let me tell you guys, displacement, this guy is a vector, remember this, ये एक vector है, and this guy is a scalar. Scalar मतलब सिर्फ value रहेगा, but vector होने की वजह से displacement का magnitude भी रहेगा और direction भी रहेगा, right? Let us try and understand. For this case, let us find out the displacement. So displacement क्या होगा, वो यहाँ से start हुआ, घूम करके final point पे आ गया या end point पे आ गया. So what is displacement? Displacement दोस्तों, इट इज अ वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर है फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट. तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट्स अ वेक्टर फ्रॉम माय स्टार्ट पॉइंट ए टू माय एंड पॉइंट बी, राइट. दिस विल बी माय एक्स वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वेक्टर. व्हाट इज दैट? इट्स अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट to the end point or to the ending point. Ending point को final point भी कहा जाता है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया. तो डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, अगर पूरा घूम करके यहां से आए तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एक वेक्टर है जो स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट, रिमेंबर सिर्फ दो ही पॉइंट देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि कितना घूम घूम के आया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हम सिर्फ स्टार्ट पॉइंट को देखेंगे, हम सिर्फ एंड पॉइंट को देखेंगे और वहां से वहां तक हम एक हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना लेंगे, ठीक है, ओके. नाउ इफ यू ऑब्जर्व गाइस ऑल ऑफ देम केयरफुली, देन ऑल ऑफ देम आर इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट. और वेक्टर्स अगर स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो हम उन्हें डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. तो कैन आई राइट डाउन फ्रॉम हियर x1 वेक्टर प्लस x वेक्टर विल बी इक्वल टू x2 वेक्टर, हाँ या ना, बराबर. दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू टोटल वेक्टर. ऐड क्यों कर सकता हूं, बिकॉज सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं, राइट. सो फ्रॉम हियर इफ आई टेक x1 दिस साइड, then what will this become? अगर x1 को उस साइड ले लिया तो displacement vector will be x2 minus x1. So what is x2 minus x1? x2 vector is nothing but end point का vector, right? End point vector minus start point vector, right? So ये जो displacement जो है, it's nothing but displacement जो vector बन रहा है, it's nothing but simple as that. डिस्प्लेसमेंट जो बन रहा है, x2 इज एंड पॉइंट, राइट. सो इट इज एंड पॉइंट माइनस स्टार्ट पॉइंट, राइट. बड़ा सिंपल है. तो यहां पर इस एग्जांपल में अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज x1, तो आप लोग बोलोगे सर x1 इज 2. लेट्स अज्यूम दैट इट कैन बी इन वेक्टर फॉर्म, इट इज 2i कैप, राइट. अज्यूम दिस इज द x एक्सिस, ठीक है. तो व्हाट विल बी x1 in this case? Let me turn on to this example. So x1 will be 2i cap, x1 vector, right? And what will be x2 vector? बताओ मुझे, क्योंकि वो 2 पे x1 वेक्टर होगा, 4 पे x2 वेक्टर होगा, तो x2 वेक्टर will be 4i cap. तो अभी हमने देखा what is displacement vector? It is final vector minus initial vector, that will be 4i cap minus 2i cap. So 4 minus 2 will be 2 vector. So therefore displacement vector या displacement in this case I can say it is 2i. तो ये जो displacement हुआ है ना, कितने यूनिट्स का हुआ है, 2 यूनिट्स का मूवमेंट हुआ है, राइट, बराबर. तो ध्यान से समझो, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देखेंगे, स्टार्ट पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देखेंगे, ठीक है. तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अगर ये मीटर्स में है स्केल, तो मैं बोलूंगा दोस्तों the displacement of the body is 2 meters. समझ में आया? In this case displacement of the body is 2 meters. Okay, 2 meter या 2 units, जो भी कहना है कह दो. Okay, fine. तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली आपको ये जो 2i है ना, ये 2 मीटर्स ही बता रहा है, प्लस ये पॉजिटिव क्या बता रहा है कि बॉडी जो मूव हुआ है ना, इट्स मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट. तो डायरेक्शन के बारे में भी पता चल रहा है दैट इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अगर यहां पर -2i होता तो उसका मतलब क्या होता कि बॉडी इज मूविंग इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है.
तो आई होप ये समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट से हमें वैल्यू भी पता चला और डायरेक्शन भी पता चला, राइट? इट्स अलोंग द एक्स एक्सिस. ओके, नाउ जंपिंग फर्दर, let us try and understand what do you mean by path length. Okay, तो displacement तो समझा, it is x2 minus x1, final point minus initial point, खत्म, ज्यादा सोचने का नहीं, final point minus initial point. Distance या path length क्या होता है? Distance या path length is nothing but it is the actual distance traveled by the body. Actual distance traveled by the body. Okay, so tell me how much is the actual distance? तो आप बोलोगे सर actual distance तो ये पहले 1 से 2 गया, 1 2 3 4 5 6, राइट? 6 यूनिट्स आगे बढ़ा है. देखो पहले यहां से यहां 1 यूनिट, राइट? आई कैन जस्ट शो यू. फिर यहां से यहां एक और यूनिट, फिर यहां से यहां एक और यूनिट, फिर यहां से यहां एक और यूनिट, फिर वापस आया एक और यूनिट, एंड यहां से यहां वापस आया एक और यूनिट, राइट? सो बेसिकली इट हैज मूव्ड, एक्चुअली इट हैज मूव्ड 6 मीटर्स. वो आगे जाके पीछे आया, राइट? बराबर. So the path length in this case, in this example, it's nothing but 6 meters. Path length actual distance जो travel किया जाता है ना, उससे कहा जाता है, ठीक है? पर displacement is nothing but just based on initial point and final point. Okay? I hope this is clear enough. Okay? Please try and understand. Okay. Let me give you one more example. Displacement, क्योंकि बहुत important चीज आपको पता होनी चाहिए. Okay? Let me give you one simple example on this. Keep this in mind, okay? Displacement and path length. Let's say again I have the same axis. This is 0 1 2 3, let's say 4. Let's say I have a car which is starting from this point. It is going ahead, आगे जाते जाते आते आते. This is the start point. Okay, मैं पहले start point को mark कर देता हूँ. This is my start point. ओके, उसने यहां से स्टार्ट लिया है, और लेट मी जस्ट नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम समवेयर हियर. लेट्स से दिस इज माय स्टार्ट पॉइंट. सो लेट्स से इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम हियर, आगे गया आगे गया आगे गया, स्ट्रेट लाइन में. ओके, then it has come back here, फिर पूरा घूम करके वो वापस यहीं आ गया. This will be the end point. ठीक है? Please try and understand क्या हुआ है. वो स्टार्ट उसने एक जगह से किया है और फिर एंड भी घूम के वापस वहीं आ गया. So start point and the end point is same. So if I want to draw x1, then this will be x1, that is starting point. And similarly x2 will be also the same, right? That means if I write down in this case, x1 will be I cap, right? And x2 will also be just I cap, या 1 I cap मैं लिख सकता हूँ. Displacement is 1, right? या position vector of both the points are 1. So start point or end point both are the same. So in this case, if I want to find out the displacement, so displacement in this case x will be equal to, x vector will be equal to x2 minus x1, that will be I minus I. That means what? That means what? That the displacement is 0 या 0 vector. तो मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर start point और end point same रहते हैं ना, तो displacement 0 रहता है. Okay? So this means a very important note, that if start point and end point are same, जैसा यहां हुआ है, comma, then displacement is 0, right? पर इस केस में let's say if I want to calculate the actual, or I can say path length, let's say मुझे यहाँ path length निकालना है, जैसे distance कहते हैं, तो distance कितना होगा? Tell me. So path length or distance in this case, tell me how much is the distance traveled. तो आप बोलोगे सर वो पहले 1 से 2, 1 2 3 4 5 6 मीटर्स मोशन हुआ है, राइट? ऑल तो वो घूम करके वापस आ गया, पर उसका जो एक्चुअल डिस्टेंस है, पाथ लेंथ है, जैसे डिस्टेंस भी कहा जाता है,
how much is that? That is 6 meters. Okay, fine. So I hope difference समझ में आ गया. I repeat it for the third time now क्योंकि बहुत important चीज है. डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, पर ये जो पाथ लेंथ है वो पूरे डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, कितना कवर हुआ है. ओके फाइन. सो ऑन दैट नोट आई हैव अंडरस्टूड मेन डिफरेंस समझ में आ गया. अगर ये समझ में आ गया तो पूरी कहानी समझ में आ गई. ठीक है, टेक्स्ट बुक में सिर्फ वर्ड दिए, डिटेलिंग एग्जाम्पल मैंने आपको यहां से समझा दिया है. ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पाथ लेंथ इज अ स्केलर, सिंपल स्केलर. ओके फाइन. नाउ लेट मी जंप ओवर and come to the next concept. दो terms समझ लिए. Let us try and understand the next part, that is the concept of. Now guys, moving on to the third one, that something called as average velocity. ठीक है, displacement और path length देखने के बाद अब हम चलते हैं average velocity, और average velocity के साथ में हम पढ़ेंगे what is average speed. Okay, जिस तरह से हमने एक वेक्टर और एक स्केलर क्वांटिटी को देखा था, कौन सी वेक्टर और कौन सी स्केलर क्वांटिटी को देखा था, जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वेक्टर और स्केलर होते थे, उसी तरह से यहाँ पर एवरेज डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एवरेज वेलोसिटी, इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट. ये वेक्टर होगा और ये स्केलर होगा. नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ आर दीज टू थिंग्स इन पिक्चर. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड देम इन डिटेल. सो दोस्तों, लेट अस फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला. तो एवरेज वेलोसिटी इट इज डिनोटेड बाय वी एवरेज या एवीजी, इस तरह से लिखा जाता है. ठीक है, सो एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द फॉर्मूला, वी एवरेज इज गिवन बाय द फॉर्मूला, या डायरेक्ट मैं लिखता हूं वी एवरेज. एक्चुअली वी एवरेज as you know it's a vector quantity, it's given by the formula displacement upon time. What is it? It is displacement upon time. Okay, fine. I hope that is clear enough. या टाइम इंटरवल भी लिखना है तो चलेगा. सो दोस्तों, अगर मैं कहूं just in terms of notation, so what is average velocity? Average velocity is displacement x upon time, right? T stands for time. Time is a scalar. Time is never a vector. Okay, तो इसको इस तरह से लिखेंगे. So what is this average velocity? Average velocity is displacement upon time. Okay, fine. I hope this is clear enough. समझ में आ गया?